and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Commental Guru. Let's compete. Today, I will discuss again POCSO Act. Uh, it is modified in 2026. It is part 2. In this part, I will discuss section 7 to 12. And in this part also, I will discuss 15 MCQs. Definitely, the session would be interesting one. You can get complete information about each and every section. So till the end, you listen the video. Definitely you get complete information and question pattern also according to the latest actually pattern of questions coming in different central government and state government exam. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. You see, it is my channel name, Asit Governmental Guru. Let's compete. So please subscribe my channel, like my channel, and share my channel. And if any queries there, you can contact with me. My WhatsApp number it is 8327782034 and clear your doubt. So now I am going to discuss POCSO Act 2012 and it is modified in 2026 and it is part 2. So in this part, I will discuss sexual assault and punishment. Therefore, so section 7 and 8. Section 7 related to the sexual assault. What type of things actually include in sexual assault we can see. And then in related to the sexual assault related to punishment. It is section 8. So first one, section 7 rule position is very important one. Section 7 it is sexual assault. A person commits sexual assault on a child if they touch the private parts of the child, vagina, penis, anus or breast with sexual intent. ये sexual intent बहुत important है. They make the child touch their own or someone else's private parts, or they do not any other physical act with sexual intent involving contact but without penetration. So sexual assault basically physical touch. Okay, physical touch of the child and forcing the child to touch the private parts of others. So so in this case actually without penetration, just to remember. But most important thing, it means forcing the child to touch the physical part, forcing the child to touch the private part, and also a sexual intent is there. Key points you remember: physical contact plus sexual intention, it is sexual assault. So two things, one is physical contact plus sexual intention. Okay, so here no penetration is involved, otherwise it becomes a serious offense under other sections already I have discussed. So in this case two things you remember: physical contact with sexual intention, right? It is section 7 rule position you remember. And related to the punishment, related to the punishment, it is section 8 punishment for sexual assault. If a person commits sexual assault, minimum punishment 3 years imprisonment. Okay, मैक्सिमम पनिशमेंट 5 years imprisonment. एंड ये भी है, फाइन इज कंपल्सरी. ठीक है, तो फाइन किसको देना पड़ेगा? इट मीन्स विक्टिम, चाइल्ड को फाइन देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पर याद रखना है पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट 3 years imprisonment and maximum punishment 5 years imprisonment, right? And rule position, punishment for sexual assault rule position is section 8. Okay, and fine is compulsory. Three things you remember: minimum punishment, maximum punishment, and fine is compulsory. And fine must be paid to the victim child. Next one, section D में it is very important one, aggravated sexual assault and punishment. तो जो section 9 है वो aggravated sexual assault है, और जो section 10 है punishment for aggravated sexual assault. तो अभी हम देखेंगे aggravated sexual assault. ओके, इन सेक्शन 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेक्शन 9 रूल पोजीशन एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट. फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी का बात आ जाता है. ठीक है, द लॉ आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हु हैव ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन. इफ दे कमिट द असल्ट इट इज एग्रावेटेड. तो इसमें क्या है,
actually those children actually they must ensure the protection of the child. They must create the safe and secure environment for the child. Okay, if they commit the assault, then it is aggravated one. Okay, चाहे domestic it means in home or basically neighborhood or basically in police station or in any hostel, any remand home or in hospital. So where actually basically people it means they must protect the child. But if they commit the assault, then it is aggravated one. First one, you see uniformed personnel, say police officers, armed forces, or security forces, whether on duty or off, if identified as such. So first one, uniformed personnel, police officers, armed forces, or security forces, if they commit assault on the child, then it is aggravated one. Next one, public servants, basically government servants. Those are serving for the public. Their main intention and main purpose is to serve the public qualitatively. So any government official, if they commit the assault on the child, it is aggravated one. Then custodial staff, जैसे staff at jails, remand homes or observation homes. Okay, it is their duty. So custodial staff, their duty is to provide proper protection, to create safe environment, to create a secure environment for the children. If they commit assault, then it is aggravated one. Right? Next one, professional staff. Professional staff, it is management or staff at hospitals, private or government, educational institutions or religious institutions. They are the professional staffs because they are working in any hospitals, either in private or government or educational institutions or religious institutions. They are professional people and they must bind with rules and regulations. They must follow the rules and regulations properly. Each and every time they create the safe environment for the child. But if they commit assault, then definitely the assault is sexual assault is aggravated one. Family and caregivers, relatives, चाहे blood relation or marriage or adoption, guardians or anyone in the domestic relationship or shared household. If they commit assault, then it is aggravated one. Okay, family and caregivers. Authority figures, anyone in a position of trust or authority over the child. मैं इसको तो इन्फॉर्म कर चुका हूँ. जो authority child का authority है, if they commit assault on the child, वो aggravated है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे वही अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट. जो सेकंड है वल्नरेबिलिटी एंड सिवियरिटी. ओके, वल्नरेबिलिटी एंड सिवियरिटी में फर्स्ट वन फिजिकल हार्म, यूजिंग डेडली वेपन्स, फायर और corrosive substances causing grievous hurt or injury to sexual organs. Medical consequences, inflicting HIV or AIDS or other life threatening diseases, causing mental illness or physical or mental incapacity. Okay, exploitation, taking advantage of a child's existing physical or mental disability of the child. Age, any sexual assault on a child below 12 years, aggravated one. ये इसको याद रखना है. Repeat offenses, if the person has a previous conviction for sexual offenses or commits the act repeatedly. Okay, कोई person है वो convicted था प्रेसिडिंग केस में रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो अगेन वही क्राइम किया है, तो वो अग्रावेटेड है. क्राइसिस सिचुएशंस, कमिटिंग द एक्ट ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टरियन वायलेंस और नेचुरल कैलामिटीज. ओके, इस टाइम में जो नेचुरल डिजास्टर टाइम में यदि कोई कमिट इट मींस सेक्सुअल असल्ट ऑन द चाइल्ड, वो अग्रावेटेड है. तो ये सब वल्नरेबिलिटी एंड सिवियरिटी, ये सब अग्रावेटेड. तो इसमें तीन चीज आ जाएगा, याद रखिए. फिजिकल इट मींस कॉन्टैक्ट प्लस इंटेंशन. इट मींस इंटेंट इज एक्चुअली बेसिकली आपको याद रखना है. यहां पर एक चीज बताया था मैं कि दो चीज आपको याद रखना है बेसिकली, सेक्सुअल इंटेंशन और फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो उसमें जो अग्रावेटेड के जो वल्नरेबिलिटी केस में फिजिकल कॉन्टैक्ट है, सेक्सुअल इंटेंशन है, थर्ड वन है जो हार्म है, harm towards the child. Okay, suppose any injury or harm towards child. Okay, तो ये सब आ जाता है vulnerability केस में. ठीक है. नेक्स्ट वन स्पेसिफिक क्रिमिनल एक्ट्स, जैसे गैंग असल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर
क्वेश्चन आता है, व्हेन ए ग्रुप एक्ट्स विथ कॉमन इंटेंशन तो ईच मेंबर इज हेल्ड इक्वली लाइबल। तो एक ग्रुप एक्चुअली यदि सेक्सुअल असल्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी मेंबर इज लाइबल, ओके, फॉर ऑफेंस, क्योंकि उनका ईच एंड एवरी मेंबर का इंटेंशन जो है सेम है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी मेंबर इज हेल्ड इक्वली लाइबल। प्रेगनेंसी असल्टिंग द चाइल्ड नोइंग दे आर प्रेग्नेंट, सपोज चाइल्ड प्रेग्नेंट है फिर उसको असल्ट किया जा रहा है तो वो अग्रावेटेड में आएगा। अटेम्प्टेड मर्डर, कमिटिंग द असल्ट एंड देन ट्राइंग टू किल द चाइल्ड, ओके। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मेकिंग द चाइल्ड स्ट्रिप और पैरेड नेक्ड इन पब्लिक, वो भी अग्रावेटेड आएगा। फोर्स्ड मैच्योरिटी, एडमिनिस्टरिंग ड्रग्स, हार्मोन्स और एनी केमिकल्स टू मेक ए चाइल्ड एट एन अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, ए फोर्स्ड मैच्योरिटी। तो ये सब अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में आएगा। तो तीन चीज जो सेक्सुअल असल्ट है, फिजिकल कांटेक्ट प्लस सेक्सुअल इंटेंशन, मगर अग्रावेटेड हो जाएगा ये सब कंडीशन जब अथॉरिटी मेक्स इट मींस कमिट असल्ट। if authority commit assault or in vulnerable situation, suppose any people it means assault the child, और स्पेशल क्राइम्स लाइक जैसे गैंग असल्ट है कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है और असल्ट दैट चाइल्ड, या अटेम्प्टिंग मर्डर, तो ये सब अग्रावेटेड में आ जाता है। तो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट का जो रूल पोजीशन है वो 9 है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसमें कॉमन इंटेंशन जो है गैंग असल्ट, ये रूल पोजीशन याद रखिए, क्योंकि जो सेक्शन 9 है वो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट है और उसका सबसेक्शन जी आप देखिए 9G, इसमें गैंग असल्ट के ऊपर। तो इसमें क्या है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द गैंग उनका इंटेंशन सेम है, तो ईच एंड एवरी मेंबर इज लाइबल, ओके, फॉर ऑफेंस। तो उसको यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पनिशमेंट के ऊपर आएंगे, अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट। तो मिनिमम पनिशमेंट 5 years, मैक्सिमम 7 years, बट कंपल्सरी इज फाइन। तो यहां पर मिनिमम जो सेक्सुअल असल्ट था मिनिमम 3 years था, मैक्सिमम 5 years था और फाइन कंपल्सरी था। मगर जब अग्रावेटेड लग जाता है, अग्रावेटेड कब अग्रावेटेड होता है आप तो मैं डिस्कस किया, तो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट केस में मिनिमम पनिशमेंट 5 years, मैक्सिमम 7 years एंड फाइन इज कंपल्सरी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट अनदर 2 पार्ट्स को चलेंगे। जो पार्ट ई में सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट है जो सेक्शन 11 है, सेक्सुअल हरासमेंट है, और पनिशमेंट जो है पनिशमेंट रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट वो सेक्शन 12 है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 रूल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेक्शन 11 इट इज सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे सेज वर्ड्स, मेक साउंड्स, जेस्चर्स और शोज बॉडी और ऑब्जेक्ट्स टू द चाइल्ड, सो द चाइल्ड हियर्स और सीज देम इन ए सेक्सुअल वे। ये फर्स्ट आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट में। कोई ऐसा साउंड करना, कुछ वर्ड्स यूज करना, जो जेस्चर है, नेगेटिव जेस्चर है, कोई बॉडी पार्ट शो करना और इट मीन द चाइल्ड को शो करना, तो ये सब चीज जो सेक्सुअल वे में, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। कि मेक्स द चाइल्ड शो देयर बॉडी और एनी पार्ट टू देम और अदर्स, कि अब जब हम चाइल्ड को फोर्स करते हैं कि फोर्स की उसको परसुएड करके बोलते हैं कि उसका कोई बॉडी पार्ट को शो करना है, दिखाना है, तो ये भी चला जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट में। शोज द चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट, कोई पोर्नो कंटेंट उनको शो करना है चाइल्ड को, वो आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट में। रिपीटेडली फॉलोज, वॉचेस और कॉन्टैक्ट्स द चाइल्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन और डिजिटल मीन्स, चाइल्ड को फॉलो करना, उसको वॉच करना और उनको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में कांटेक्ट करना, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। थ्रेटन्स टू शेयर रियल और फेक सेक्सुअल इमेजेस और वीडियोस ऑफ द चाइल्ड, उसको थ्रेटन करना कि तेरा कोई इमेज को सपोज मैं वायरल कर सकता हूँ, कि उसको सपोज वीडियो में प्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीका का जो थ्रेटनिंग है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। लियोर्स और टेम्प्ट्स द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी और गिव्स एनी रिवॉर्ड फॉर इट, तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी सेंटेंस ये सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाता है। ये सेक्शन 11 है पोक्सो एक्ट 2012 का, ठीक है। और उसका जो पनिशमेंट है, जो सेक्शन 12 है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, ए जेल टर्म ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन
मीनिंग इट कैन बी रिगोरस और सिंपल फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ अप टू 3 years। इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट केस में जो पनिशमेंट है अप टू 3 years है। ओके, अप टू 3 years एक्चुअली पनिशमेंट है, तो उसमें मेंशन किया जाएगा, चाहे 1 year हो सकता है, 2 years हो सकता है, मगर अप टू 3 years। और फाइनेंशियल पेनल्टी भी है। इट मीन्स द ऑफेंडर इज ऑल्सो लाइबल टू पे फाइन इन एडिशन टू द प्रिजन सेंटेंस। तो फाइन भी पे करना है विक्टिम चाइल्ड को, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट केस में जो पनिशमेंट है अप टू ड्यूरेशन अप टू 3 years, याद रखना है, ठीक है। तो ये 6 to 12 था। अभी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मगर यहां पर देख लीजिए जो येलो पार्ट है वो सेक्सुअल असल्ट रिलेटेड है, सेक्शन 7 and 8। तो सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया जैसे फिजिकल कंटैक्ट नो पेनिट्रेशन, फिजिकल कंटैक्ट सेक्सुअल इंटेंशन नो पेनिट्रेशन। तो मिनिमम पनिशमेंट 3 years, मैक्सिमम 5 years, कंपल्सरी फाइन। और नेक्स्ट है अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट जो एंड फाइन। तो सेक्शन 9 है अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया है, और सेक्शन 10 पनिशमेंट है। तो उसमें क्या है, फिजिकल कंटैक्ट है, नो पेनिट्रेशन बट अग्रावेटिंग फैक्टर, अग्रावेटिंग फैक्टर में बताया। तो मिनिमम पनिशमेंट 5 years, मैक्सिमम 7 years और कंपल्सरी फाइन, ठीक है। तो इसको एक टेबल में प्रेजेंट कर दिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, सेक्शन 7 जो है वो सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन करता है। Which of the following is a necessary element? Which of the following is a necessary element to constitute the offense of sexual assault? It is the use of a deadly weapon, the presence of sexual intent, physical penetration of the body, the act must occur in a public place. मैंने सेक्सुअल इंटेंट, क्योंकि जो सेक्सुअल असल्ट है दो चीज है, एक है फिजिकल कांटेक्ट प्लस सेक्सुअल इंटेंट। एक है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिजिकल कांटेक्ट प्लस सेक्सुअल इंटेंट, ओके, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेक्सुअल असल्ट अंडर सेक्शन 8? मिनिमम पनिशमेंट जो है सेक्सुअल असल्ट में 3 years और मैक्सिमम है 5 years, मैक्सिमम है 5 years और कंपल्सरी फाइन। ओके, द ऑफेंडर कंपल्सरीली मैंडेटोरीली द ऑफेंडर मस्ट पेड फाइन टू द विक्टिम चाइल्ड। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए पुलिस ऑफिसर commits sexual assault on a child within the limits of the station where they are appointed, it is classified as aggravated sexual assault. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए सेक्शन 9 जो अथॉरिटी फिगर है, जैसे पुलिस है कि आर्मी पर्सोनेल से, वो प्रोटेक्शन देना चाहिए। यदि उनके द्वारा ये जो असल्ट इट मींस कमिटेड होता है तो वो अग्रावेटेड हो जाता है, ओके, अथॉरिटी फिगर में। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में जाएगा, जो सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज constitutes aggravated sexual assault according to the provided text? Assault involving only verbal threats, assault committed during a natural calamity, assault where no physical contact occurred, assault on a person above 18 years of age। यहाँ पर natural calamity, assault committed during a natural calamity, ये aggravated sexual assault आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a person who commits sexual assault on a child known to be pregnant is liable under। तो उसमें दे दिया, ए पर्सन हु कमिट सेक्सुअल असल्ट ऑन ए चाइल्ड नोन टू बी प्रेग्नेंट इज लाइबल अंडर। तो ये अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट। तो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में सपोज पनिशमेंट होगा तो सेक्शन 10 वो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट आ जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल असल्ट इन ए चाइल्ड नोन टू बी प्रेग्नेंट, सपोज द चाइल्ड प्रेग्नेंट है और उसको उसके ऊपर असल्ट किया जाता है तो ये अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट है। और जो पनिशमेंट होगा वो सेक्शन 10 में है, क्योंकि सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया है सेक्शन 7, सेक्शन 8 पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट, मगर जो 9 है वो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया है और उससे रिलेटेड पनिशमेंट जो है सेक्शन 10 है। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट एज पर सेक्शन 10? इट इज 7 years, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट 5 years, मैक्सिमम 7 years। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Question 7. According to section 9V, what intent makes the administration of a drug or hormone an aggravated sexual assault? Intent that child attains early sexual maturity, intent to cure a pre-existing illness, intent to improve academic performance, intent to cause temporary sleep. तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए है, इंटेंट दैट द चाइल्ड अटेन्स अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी. ओके, कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना कि कोई ऐसे हार्मोनल प्रोडक्ट. ओके, तो इसका मेन जो इंटेंट है कि चाइल्ड अटेन्स अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Which section defines the acts that constitute sexual assault? जो है सेक्शन 7 है. सेक्शन 7 है, सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. What constitutes sexual assault under section 7? Any verbal abuse, physical contact with sexual intent without penetration, watching a child secretly, sending messages. इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फिजिकल कंटैक्ट विथ सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 10. गैंग सेक्सुअल असल्ट ऑन ए चाइल्ड फॉल्स अंडर, ये भी अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट है, सेक्शन 9. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जो गैंग सेक्सुअल असल्ट है वो सेक्शन 9 में आएगा, वो अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में आएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. maximum punishment for aggravated sexual assault. तो maximum punishment 7 years. Maximum punishment for aggravated sexual assault is 7 years. Minimum is 5 years. Option C is the correct answer. Question number 12. यहाँ पर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे. इसको मैं अंडरलाइन कर दिया करेक्ट को. 4 स्टेटमेंट्स गिवन. ओनली करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असल्ट. इसको भी मैं अंडरलाइन कर दिया अंडर सेक्शन 7. तो उसमें आप देखिए जो सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया गया है उसमें जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इट नेसेसरली रिक्वायर्स द पेनिट्रेशन ऑफ द वैजिना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ ए चाइल्ड. नो, सेक्सुअल असल्ट इज विदाउट पेनिट्रेशन. फर्स्ट वन wrong one. It includes making a child touch the vagina, penis, anus or breast of the offender or any other person. Yes, physical touch, correct one. The act must be committed with sexual intent. To qualify under this section is sexual intent. Physical contact plus sexual intent. Any physical contact without penetration if done with sexual intent is categorized sexual assault. Yes, it is correct one. तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड, फोर जो स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड. अगेन मैं अंडरलाइन कर दिया. करेक्ट आंसर कोड को हम देखेंगे. ऑल्सो 4 स्टेटमेंट्स गिवन with reference to the aggravated sexual assault, section 9. Identify which of the following statement are correct. If a police officer commits sexual assault within the limits of their appointed station, it is aggravated sexual assault. Yes, it is correct one. Sexual assault by a management member of a private hospital on a child, is that hospital is considered aggravated. Yes, चाहे private hospital हो कि government hospital हो, उसमें जो management staff है, if they commit assault over the child, okay, then definitely sexual assault over the child, then definitely it is aggravated one. Aggravated sexual assault is only committed only when deadly weapons are used. only committed दिया है, ये गलत है. ठीक है. so many factors are there for aggravated sexual assault. Committing sexual assault on a child below 12 years of age automatically qualifies as aggravated sexual assault. यदि below 12 years child के ऊपर sexual assault किया जाता है वो aggravated हो जाएगा. ये भी करेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. 4 स्टेटमेंट्स गिवन, आपको डिटेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. द पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट अंडर सेक्शन 8 इज ए मिनिमम ऑफ 3 years एंड मे एक्सटेंड टू 5 years प्लस ए फाइन. करेक्ट है. जो सेक्सुअल असल्ट में मिनिमम 3 years फाइन है, मैक्सिमम 5 years है प्लस फाइन. Second is the punishment for aggravated sexual assault under section 10 is a minimum of 5 years and may extend to 7 years plus a fine. करेक्ट है. जो aggravated sexual assault जो section 10 जो डिफाइन किया है कि aggravated sexual assault केस में ये पनिशमेंट होगा minimum 5 years, maximum 7 years and compulsorily fine. Under the explanation of gang assault,
gang sexual assault, only the primary offender is liable for the act. Only primary offender, only primary is incorrect one. Each and every member of the gang, okay, must liable for the offense. Only primary member नहीं, each and every member of the gang. तो थर्ड वन गलत है. Administering hormones to a child to induce early sexual maturity with sexual intent is to form of aggravated sexual assault. ये करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा है मीन्स ओनली थर्ड स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए. इसमें करेक्ट कोड को डिटेक्ट करेंगे. ऑल्सो 4 स्टेटमेंट्स गिवन. Which of the following scenarios would be classified as aggravated sexual assault according to section 9? An assault committed by a person who has a domestic relationship with the parent of a child. Correct है. An assault committed by a member of the armed forces during the course of their duties. Correct है. An assault that causes the child to become mentally ill as defined under the Mental Health Act 1987. ये भी करेक्ट है. इसको याद रखना है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. यदि कोई चाइल्ड के ऊपर असल्ट होता है और वो मेंटली इल हो जाता है तो वो अग्रावेटेड है सेक्सुअल असल्ट. एन असल्ट कमिटेड ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी, ये भी अग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट है. चारों करेक्ट है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये मेरा सेकंड पार्ट था, सेक्शन 6 to 12. फिर आप अदर पार्ट्स को देखिए तो उसको मैं पूरा कवर करूंगा, क्योंकि जो पोक्सो 2012 है और कुछ उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुआ था 2019 में, और मैं बोल रहा हूँ ये पूरा अपडेटेड वर्जन है. तो आगे में जो भी पार्ट्स मैं लाऊंगा वो डेफिनेटली दिस पार्ट्स वुड बी इंटरेस्टिंग वन. सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू.